Good evening. So we are covering today games and tournaments. Now, a lot of people worry about games and tournaments. See, round robin concept, picking coins, biscuits concept, and maybe one or two other topics. They need theory. Otherwise, games and tournaments is basically number based reasoning. You will see today once I start solving these sets for you. मैं क्या कह रहा हूं आपसे गेम्स एंड टूर्नामेंट्स नंबर बेस्ड रीजनिंग है and you have been doing that with me since the second third lecture of LRDI. आपका LRDI mixed all lectures have been number based reasoning. So games and tournaments is not anything or something new. Panic नहीं करना है games and tournaments को देख के. You need to combine reasoning and very small degree of calculation to answer these. ऐसे I have created sets for you. ये पूरा complete set है. Theory, information, everything. फिर solution आएंगे इनके and so on so on. I'll give you 6 to 8 minutes for every set. जैसे अभी आपके सामने एक सेट आ रखा है ये वाला सेट. So I'll give you let us say 8 minutes for this. आपको क्या करना है? You have to read from here to here. बिना पेन चलाए read from first word till the last option. फिर जज करो अपने मन में सोचो is it type A, type B, type C. A means easiest, C means most difficult. Difficult कब होता है set? When the question starts with if, when there is lot of missing data, when the options are CBD, बहुत option है CBD, तो इसमें multiple cases बनते हैं, it becomes difficult. You have solved something similar पहले 2-3 बार, you have seen similar set, that is A. सारे ऑप्शन डेफिनेट हैं. रीडिंग करते करते आपको 30% सेट समझ में आ गया, 40% समझ में आ गया, क्लिक कर गया व्हाट इज बीइंग सेड, तो ये आपके लिए टाइप ए बन जाएगा. और मॉडरेट लेवल आर बी. कैट में एक सेट आपका ए होगा. देयर विल डेफिनेटली बी वन सेट ए, देयर विल डेफिनेटली बी वन सेट बी. अब कभी कभी यहां पर एक और सेट आ जाता है, कभी कभी यहां पर दो सेट आ जाते हैं, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट आई एम सेइंग इज इसका एक, इसका एक, इसका एक कंफर्म है, वन 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 ईच कंफर्म है. जो चौथा सेट है विल आइदर बी दिस और दिस. एक इजी सेट, एक मॉडरेट, एक डिफिकल्ट कंफर्म है. देयर आर गोइंग टू बी फोर सेट्स, फोर सेट्स, 5 क्वेश्चंस ईच. तो 20 क्वेश्चंस का आपका LRDI का पूरा सेक्शन रहता है. सो देयर विल डेफिनेटली बी वन 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 ईच. और अगला एक सेट रहेगा कोई एक, वो आइदर डिफिकल्ट रहेगा, मॉडरेट रहेगा, इजी एक कंफर्म रहता ही रहता है. सो योर 8 minutes आर स्टार्टिंग नाउ. रीड, जज एंड ट्राई टू सॉल्व. रीड भी करो, जज भी करो एंड ट्राई एंड सॉल्व एज वेल. गुड इवनिंग गाइस. Start, a time is ticking. Start. 8 minutes you have.
Should I start solving this set for you, or do you guys need 1 or 2 more minutes? Should I start solving? Okay, I'll give you 2 more minutes. Yes. 2 मिनट मांगे हैं किसी ने. So we'll wait. चलो. As I said, शुरू से आखिर तक सब पढ़ना है, and while you are reading, start formulating a strategy. 6 friends, Parul, Sumedha, Smita, Cheena, Isha, Atharva, are playing coin flip game. The person who gets head wins the game, and if both persons get head or both get tail, the game ends in a draw. Each toss ended with win or loss or draw. The game started at 9 a.m. with 3 tosses between 6 friends. क्योंकि friends 6 हैं, there are 6 friends, तो दो करके पेयर बन के टॉसेज होंगे. There are 3 tosses at 9 a.m. There are 3 tosses, तो 3 pairs, 3 toss. The other time slot at which the toss was done was at 9:15, 9:30, 9:45, 10 a.m. At each slot, 3 tosses were held, with each person playing exactly 1 toss at each time slot. तो अगर 9:15 का टाइम है तो पारुल का एक टॉस, सुमेधा का एक टॉस, स्मिता का, सबका एक टॉस होगा हर टाइम स्लॉट पे. ईच पर्सन प्लेज विद द अदर पर्सन ओनली वंस. ये गेम्स एंड टूर्नामेंट्स की लैंग्वेज है. एवरी पर्सन प्लेज अदर पर्सन एग्जैक्टली वंस. तो पारुल कैन नॉट प्ले अगेंस्ट हरसेल्फ हिमसेल्फ. तो 1, 2, 3, 4 एंड 5. तो पारुल के सामने देखो 5 टॉस रिजल्ट्स है. देयर आर 5 टॉस रिजल्ट्स, क्योंकि 6 पर्सन है, अपने से तो टॉस करेंगे नहीं अपने अगेंस्ट, तो 5 अपोनेंट है, 5 टॉस है, तो एवरी पर्सन हैज 5 टॉस रिजल्ट्स. The results of the game are given in the order in which each person played the coin flip game from left to right. मतलब ये वाला जो कॉइन फ्लिप का आउटपुट है, ये 9 बजे का आउटपुट है. पहला वाला जो ड्रॉ है, पारुल का ड्रॉ 9:15 पे है, 9:30 पे पारुल का विन है. तो दिस इज सीक्वेंस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अकॉर्डिंग टू द टाइम. फिर से पढ़ो. The result of game are given in the order in which each person played the coin flip game from left to right. तो ये पहला वाला जो टॉस है वो अथर्व ने जीता था, अपना खुद का पहला टॉस जीता था. 2 ड्रॉ थे, 2 लॉस थे इन द गिवन ऑर्डर.
Which of the following correctly represents the list of friends that China beat? तो चीना ने किसको किसको बीट किया? चीना के सामने 2 बार विनिंग है, तो ये पूछ रहे हैं किससे जीता चीना ने. एट व्हाट टाइम द गेम वाज प्लेड बिटवीन स्मिता एंड पारुल. तो मेरे को टाइम भी निकालना है, कितने बजे गेम खेला. फिर ऐसे भी क्वेश्चंस हैं, हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू. पारुल वन अ गेम अगेंस्ट ईशा एट 9 AM, स्मिता लॉस्ट अ गेम एंड सो ऑन सो ऑन. हाउ मेनी मैचेस डिड स्मिता लूज बिफोर शी प्लेड सुमेधा. सुमेधा से खेलने के पहले स्मिता ने कितने गेम हारे थे. तो मुझे बेसिकली टाइम निकालना है. मान लो इनका टाइम 10 o'clock का है, तो उसके पहले सुमेधा ने क्या जीता, क्या हारा था. व्हाट आई एम लुकिंग फॉर इज टाइम क्या है. मेरे को टाइम का पैरामीटर जानना है. हर एक टाइम पे जो भी टाइम होगा, 9 बज के जो भी मिनट्स होगा, देयर आर गोइंग टू बी 3 टॉसेस. उसमें हर जगह पे दो दो अपोनेंट होंगे, ए बी सी डी ई एफ. विन होगा तो आई विल राइट डब्ल्यू, लॉस होगा तो आई विल राइट लॉस. यहाँ टिक लगा देंगे, लॉस में क्रॉस कर देंगे, ड्रॉ होगा तो इक्वल कर देंगे. सो आई नीड टू विजुअलाइज द टेबल जिसमें टाइम होगा एक कॉलम, देयर विल बी अ वर्टिकल कॉलम फॉर टाइम एंड हॉरिजॉन्टल रो फॉर 3 टॉस. हर जगह पे 3 टॉस होंगे. अब अगर ए ने बी के साथ यहां टॉस कर दिया, अब ए का टॉस बी के साथ नहीं हो सकता, सी से होगा या डी से होगा, किससे भी होगा. एवरी पर्सन प्लेज अदर पर्सन ओनली वंस. तो ये रीड किया आपने. दिस विल टेक यू मे बी 2 minutes और लिटिल मोर. पूरा रीड किया फ्रॉम द बिगिनिंग टिल एंड. अब इफ वाले क्वेश्चंस आर नॉट देयर, सीबीडी वाले ऑप्शंस आर नॉट देयर, नन ऑफ दीज वाले ऑप्शंस आर नॉट देयर. और एक स्ट्रेटजी बन गई मेरे मन में. तो दिस इज कैटेगरी ए और बी. एट द बेस्ट इट इज नॉट सी. ये डिफिकल्ट सेट तो नहीं है बाय एनी पैरामीटर, बाय एनी मेजर. ये देखो आप. तो बिफोर यू प्रोसीड, ये वाली टेबल आपको रफ में कॉपी करनी पड़ेगी. ये वाली टेबल आपको रफ में कॉपी करनी चाहिए. व्हाई एम आई सेइंग दिस? क्योंकि इसमें किसका किसका ड्रॉ है मैं मैच करूंगा, किसका किसका विन है मैं मैच करी क्रॉस करता जाऊंगा. आई नीड दिस टेबल ऑन अ पीस ऑफ पेपर ऐसा. और एक टेबल मैंने बना ली टाइम स्लॉट के हिसाब से. 9 बजे 9:15. देखो 1 2 3 4 and 5. 5 tosses are happening throughout the time period. 1 2 3 4 and 5. अब आपको ना थोड़ा सा ये पेशेंस डेवलप करना है. What you can match fastest are win with loss and draw. देखो यहां पे कितने विन है, 1 2 3. There are 3 wins, there are 3 losses also. तो बहुत सारे केस बनेंगे. पारुल कैन प्ले विथ स्मिता, पारुल कैन प्ले विथ सुमेधा, पारुल कैन प्ले विथ अथर्व. देयर कैन बी मेनी केसेस. सेकेंड वाले कॉलम में देखो देर आर व्हाट, देर आर 2 wins 2 losses. तो स्मिता कैन प्ले विथ सुमेधा, स्मिता कैन प्ले विथ चीना, क्योंकि विन और लॉस पेयर होगा. 2 विनिंग साथ में खेल नहीं सकते. डिड यू नोटिस यहां पे एक ही ड्रॉ है. देयर इज ओनली 1 ड्रॉ हियर, क्योंकि ड्रॉ 2 लोगों के बीच में होता है. ये कौन सा स्लॉट है, सेकेंड स्लॉट है. इन सेकेंड स्लॉट 9:15 बिटवीन पारुल एंड बिटवीन अथर्व देयर इज अ ड्रॉ 9:15. तो मैंने इसे क्रॉस ऑफ कर दिया. अब कभी भी पारुल एंड अथर्व कैन नॉट प्ले अगेन. अभी देखो यहां पर भी देखो देर आर 2 wins, देर आर 2 losses. अब पारुल कैन प्ले विथ सुमेधा, पारुल कैन प्ले विथ चीना, सुमेधा कैन प्ले विथ चीना, सुमेधा कैन प्ले विथ स्मिता, कैन प्ले विथ चीना. तो मल्टीपल केसेस, लेकिन देर इज एग्जैक्टली 1 ड्रॉ. ये किसका ड्रॉ है, सीखो ये चीजें, लर्न दीज थिंग्स. ये ड्रॉ है ईशा और अथर्व का. ये थर्ड स्लॉट है. ये 9:15 का पहला, सेकेंड वन इज, फर्स्ट वन इज 9 o'clock, सेकेंड इज 9:15, थर्ड वाला इज 9:30. किसका है ये, ईशा अथर. व्हाट इज दैट ड्रॉ. मैं नीचे ड्रॉ लिख देता हूं, मैं ड्रॉ लिखता हूं नीचे डी लिख देता हूं ड्रॉ. तो जो मैच होगा उसे क्रॉस कर दो. अभी एक माइंड में रखना है कि ईशा अथर्व दोबारा कभी नहीं खेलेंगे. लुक एट दिस थर्ड के बाद फोर्थ कॉलम. डू यू सी देयर इज अगेन 1 ड्रॉ. तो ड्रॉ मिलती कितना इजी हो जा रहा है. दिस इज हु, स्मिता एंड ईशा. दिस इज ईशा
एंड स्मिता, दैट इज ड्रॉ क्रॉस ऑफ। ये मैंने कहा यू नीड टू पुट दिस ऑन रफ पेपर, ये रफ पेपर पे आपको मिलना चाहिए। अब यहां पर व्हाट आई सी इज, यहां पर एक ही विन और एक ही लॉस है। वेरी ब्यूटीफुल, एक ही विन एक ही लॉस है, सुमेधा एंड अथर्व, सुमेधा एंड अथर्व, विन लॉस, विन लॉस हो गया। अब देखो क्योंकि दो दो ड्रॉज है, द ड्रॉ कैन बी बिटवीन पारुल एंड स्मिता, द ड्रॉ कैन बी बिटवीन ईशा एंड चीना, ड्रॉ कैन बी बिटवीन पारुल एंड चीना, ईशा एंड चीना। बहुत सारे केस बनेंगे लास्ट वाले कॉलम में, देखो बहुत सारे केस बनेंगे ड्रॉ करने के, देयर विल लॉट ऑफ केसेस। अब कैसे सोचना है, रिवर्स सोचना है। अभी देखो जो ईशा है, ईशा, ईशा का अथर्व से तो ड्रॉ होना नहीं है, क्योंकि ईशा अथर्व ऑलरेडी प्लेड अ गेम। ईशा का ड्रॉ चीना से हो सकता है, क्योंकि ईशा हैज प्लेड अ गेम विद स्मिता एज वेल, स्मिता एज वेल। तो ये वाला जो ड्रॉ है, देखो देखो ये देखो, आपको मिल गया यहाँ पे, यू गॉट अ वेरी ब्यूटीफुल हिंट। द ड्रॉ कैन बी विथ होम, देखो मैंने किसको पकड़ा, ईशा को। ईशा का चीना के साथ में ड्रॉ हो सकता है, ईशा का स्मिता के साथ में हो सकता है, ईशा का पारुल के साथ में हो सकता है। लेकिन ईशा और स्मिता जो है पहले भी एक ड्रॉ कर चुके हैं, देखो 9:45 पे इनका एक ड्रॉ हो चुका है। तो ईशा और स्मिता का तो ड्रॉ नहीं है, ये ईशा और स्मिता का ड्रॉ नहीं है, तो इट कैन बी ईशा चीना और इट कैन बी ईशा पारुल। I'll keep those two possibilities in mind. This cannot be ईशा एंड स्मिता, तो नहीं हो सकता। नाउ गो बैक, अब बार बार करना पड़ेगा आपको ये चीज, यू हैव टू गो बैक अगेन एंड अगेन। अभी देखो ये जो सुमेधा नाम की पर्सन है, इनका विनिंग पारुल से हो सकता है, इनका विनिंग अथर्व से हो सकता है। डू यू सी, सुमेधा एंड अथर्व जो है 10 o'clock पे, देखो ये जो सुमेधा, लुक एट दिस, आई एम हाईलाइटिंग विद ब्लू कलर नाउ और येलो कलर, देखो ये सुमेधा जो है, ये विनिंग, दिस विनिंग कैन बी विथ पारुल, दिस विनिंग कैन बी विथ अथर्व, दो ही लोग हैं। लेकिन सुमेधा अथर्व तो एक गेम खेल चुके हैं ना 10 o'clock पे, ये कौन सा है 9:45, दिस इज 9:45। तो यहां पे आपके आएंगे सुमेधा, सुमेधा, अथर्व के साथ नीचे एक गेम हो रहा है 10 o'clock पे, तो ये किस साथ में आएगा, ये पारुल के साथ में आएगा। पारुल लूजेस, सुमेधा विंस, ये आपका क्रॉस ऑफ हो गया। अब केवल एक ही बच गया ना, चीना और अथर्व। देखो चीना एंड अथर्व, दिस इज चीना एंड अथर्व, चीना विंस, अथर्व लूजेस। तो ये पूरा कॉलम आपका हो गया, 9:45 आपका पूरा हो गया। एक स्टेप पीछे जाओ, गो वन स्टेप बैक। अब ये जो पारुल का विनिंग है, दिस विनिंग ऑफ पारुल, देखो हम हाईलाइटिंग ये सर्कल, लुक एट द टॉप, विनिंग ऑफ पारुल कैन बी विथ सुमेधा और चीना। देखो पारुल का कहीं पे गेम हुआ है कि, देखो पारुल और सुमेधा गेम हो चुका है ना, यहाँ पे देखो 9:45 पे पारुल सुमेधा गेम हो चुका है। जो पारुल का विनिंग है, इट कैन बी विथ सुमेधा और चीना, लेकिन सुमेधा पारुल तो 9:45 पे खेल रहे हैं, तो ये वाला गेम किनका होगा, दिस गेम विल बी बिटवीन पारुल एंड चीना, दिस गेम विल बी बिटवीन पारुल एंड चीना। चीना का लॉस है, पारुल का विन है, तो ये क्रॉस हो गया। अब ये किसका बन गया, स्मिता एंड, दिस इज स्मिता एंड दिस इज सुमेधा, दिस इज स्मिता एंड सुमेधा। स्मिता का विन है, सुमेधा का लॉस है, ये भी पूरा का पूरा हो गया आपसे कॉलम। गो वन स्टेप बैक, आप वापस आओ इस पे, कौन से वाले पे, 9:15 पे। अभी जो स्मिता का विन है, ये स्मिता का विन कैन बी विथ सुमेधा, स्मिता का विन कैन बी विथ चीमा। अभी देखो स्मिता सुमेधा अभी तो खेले आपस में, ये तरह स्मिता सुमेधा, मतलब ये स्मिता का विन किससे होगा, चीना से होगा, स्मिता चीना। यू हैव टू पे अटेंशन टू दिस, कौन किससे खेल रहा है, स्मिता एंड चीना। तो ये सुमेधा का लॉस किससे हो गया, ईशा से हो गया,
सुमेधा का लॉस हो गया और ईशा का विन हो गया। तो ये भी पूरा कॉलम हो गया, पूरा कॉलम हो गया। फर्स्ट और लास्ट बाकी है हमारे पास। अभी थोड़ा सा वापस चलते हैं लास्ट कॉलम पे। फर्स्ट में तो पूरा ही ब्लैंक है, लास्ट में फिर भी थोड़ा हिंट है। अभी देखो ईशा का एक हमें हिंट पता था, ईशा का विनिंग चीना से हो सकता है, ईशा का विनिंग पारुल से हो सकता है। देखो यहाँ पे ईशा गेम किससे किससे हो गया, यहाँ पे देखो ईशा सुमेधा गेम यहाँ पर हो गया, यहाँ पे सुमेधा। और ढूंढो ईशा का नाम, वेर इज ईशा का नाम, एवरी लाइन मतलब ईशा का नाम, ईशा अथर्व, ईशा स्मिता, ईशा सुमेधा। तो ईशा कैन स्टिल प्ले विथ पारुल एंड चीना, दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। उल्टा चलो, पारुल का पकड़ो, हमें पारुल का भी तो ड्रॉ चाहिए। पारुल का ड्रॉ कैन बी विथ स्मिता। देखो पारुल स्मिता कहीं खेले, ये देखो सुमेधा पारुल यहां खेले हैं, तो पारुल कैन बी ड्रॉड विथ स्मिता, कैन बी। देखते हैं पारुल एंड चीना, पारुल एंड चीना। देखो ये देखो पारुल चीना खेल चुके हैं यहाँ पे, पारुल एंड चीना हैव प्लेड अ गेम, तो ये पारुल चीना का ड्रॉ तो नहीं हो सकता। और पारुल ईशा, पारुल ईशा अभी भी पॉसिबिलिटी है, तो दोनों पॉसिबिलिटी ओपन है। ये वाला कॉलम हमारा फिल नहीं हो रहा है। लेट अस गो टू द फर्स्ट कॉलम। अभी पारुल का जो विनिंग है इट कैन बी विथ स्मिता और सुमेधा। देखो पारुल सुमेधा यहां पे खेल चुके हैं, दिस द फर्स्ट कॉलम आई एम फोकसिंग। ये वाला पारुल सुमेधा का मैचिंग नहीं हो सकता, पारुल सुमेधा कैन नॉट मैच। कैन पारुल स्मिता मैच? यस, पारुल स्मिता कैन मैच। कैन पारुल ईशा मैच? पारुल ईशा, यस दे कैन ऑल्सो मैच। दो पॉसिबिलिटी है पारुल के। अभी चीना पे चलो, चीना का विन है, अथर्व का भी विन है। अथर्व को पकड़ो, अथर्व का नाम बहुत दिख रहा है यहाँ पे। कैन अथर्व विन विथ ईशा? देखो अथर्व ईशा दिख रहे, देखो अथर्व ईशा दिख रहा है आपको यहाँ पे, कैन से अथर्व ईशा? तो ये दोनों का आपस में मैच नहीं हो सकता। अथर्व कैन विन विथ सुमेधा, देखो अथर्व सुमेधा दिख रहा है आपको, अथर्व सुमेधा दिख रहा है आपको यहाँ पे, अथर्व सुमेधा भी कैंसिल हो गया। मतलब ये वाला जो है अथर्व हैज टू बी विथ स्मिता, अथर्व हैज टू बी विथ स्मिता। अब ये जो चीना का है विनिंग, चीना का विनिंग कैन बी विथ सुमेधा और ईशा। देखो कहीं पे चीना और सुमेधा दिख रहा है आपको, चीना स्मिता, चीना पारुल। अब देखो कि चीना पारुल का ऑलरेडी विन आ चुका है यहां पे, पारुल सुमेधा पारुल ईशा, दो दो केस बच रहे हैं, पारुल सुमेधा पारुल ईशा। ये रहा पारुल सुमेधा, पारुल और सुमेधा पहले गेम खेल चुके हैं, तो यहां पे गेम होगा पारुल और ईशा का विन लॉस। अब एक ही बच गया आपका, दैट इज ईशा एंड चीना, दैट इज हमने पारुल ईशा को मैच किया, तो चीना और सुमेधा, चीना और सुमेधा। तो आखिरी वाले कॉलम पे आ जाओ, आखिरी वाला कॉलम भी आपका हो जाना चाहिए। आखिरी कॉलम में क्या प्रॉब्लम थी? आखिरी कॉलम में हमारे ड्रॉ नहीं मैच हो रहे थे, अब सारे मैच होने चाहिए क्योंकि आगे के सारे मैच हो गए, ये हट गया था। ईशा का ड्रॉ कैन बी विथ चीना, ईशा चीना ने कहीं पर भी गेम नहीं खेला है, यस। ईशा का ड्रॉ कैन बी विथ स्मिता, ये स्मिता और चीना खेल चुके हैं, सुमेधा और ईशा खेल चुके हैं, ईशा एंड स्मिता खेल चुके हैं, ईशा और स्मिता नहीं हो सकता। ईशा एंड पारुल खेल चुके हैं, द ओनली पॉसिबिलिटी इज ईशा एंड चीना, ईशा चीना ड्रॉ ड्रॉ। तो आपका बच गया पारुल
स्मिता ड्रॉ ड्रॉ। ये अगर कैट एग्जाम है एंड आई डोंट हैव टू एक्सप्लेन, 2 मिनट का रीडिंग लगेगा ही लगेगा और 6 to 8 मिनट का सॉल्विंग लगेगा आपको, क्योंकि आगे बढ़ना वापस जाना, आगे बढ़ना वापस जाना, यू हैव टू। एक बार कंप्लीट करो ये टेबल। अब इसमें आप पूछोगे सर ये थर्ड वाला कहां से आया था, सो इट्स अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस और मुझे पूरा वापस जाके शुरू से शुरू करना पड़ेगा। आप केवल उनको मैच करो विच आर 100% श्योर। इफ देर आर ओनली 2 people विथ अ ड्रॉ तो उनका आपस में ड्रॉ हुआ है। इफ देर इज ओनली 1 win एंड 1 loss तो आपस में हुआ है। तो जो श्योर शॉट है, ऐसे 3 भी मिल गए आपको, 4 भी मिल गए, तो उसके थ्रू दूसरे सॉल्व होंगे। तो आफ्टर सॉल्विंग दिस आई फील दिस इज अप्रोचिंग टाइप बी। टेक योर टाइम, कंफर्म। कहीं पे देखो कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है क्या? लास्ट में हमने क्या पकड़ा, देखो जो लास्ट कॉलम था, ये जो लास्ट कॉलम है, इन दिस कॉलम एक तो कंफर्म है विनिंग लूजिंग किसका है, विनिंग किसका है, सुमेधा, लूजिंग अथर्व, ये कंफर्म है। अब ईशा के 3 पार्टनर हो सकते हैं। ईशा कैन प्ले विथ पारुल, ये देखो ईशा और पारुल का एक मैच पहले हो गया है ना, तो ईशा पारुल नहीं खेल सकते। ईशा कैन प्ले विथ स्मिता, अभी देखो कहीं पे ईशा स्मिता दिख रहा है, ईशा स्मिता, ये देखो ईशा एंड स्मिता पहले एक बार ड्रॉ कर चुके हैं, तो ईशा कैन नॉट प्ले विथ स्मिता, तो ईशा विल डेफिनेटली प्ले विथ चीना ओनली। अब देखो क्योंकि पहला वाला रो कंप्लीट हुआ, दैट इज व्हाई आई गॉट द हिंट अबाउट ईशा पारुल। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं यू हैव टू गो बैक, मूव फॉरवर्ड, गो बैक, बार बार करना पड़ेगा। Once you understand Isha is playing with China, that means Parul will play against Smita and both are going to have a draw. Confirm you are able to keep up with the table. थोड़ा आंसर की तरफ चलते हैं. Let us mark some answers. तो which of the following correctly represents the friends China beat? चीना ने किनको किनको हराया? तो गोइंग बैक टू द टेबल, देखो जहां जहां चीना का नाम है, इन द फर्स्ट नेम चीना विंस किससे, सुमेधा से। इन द सेकेंड रो चीना लूजेस, हर लाइन में एक बार नाम आएगा चीना का। चीना लूजेस इन द थर्ड लाइन, चीना विन्स इन द फोर्थ लाइन, किससे जीते चीना ने, अथर्व से। एंड इन द लास्ट लाइन चीना का ड्रॉ है, तो चीना ने किससे जीते, सुमेधा से एंड अथर्व से। हमने स्पेलिंग लिखने मिस्टेक करी कि यहाँ पे सुमेधा अथर्व की, ये टाइपिंग मिस्टेक बेटा, करेक्ट दिस इज सुमेधा एंड अथर्व, दिस इज सुमेधा एंड अथर्व।
सुमेधा को हराया है चीना ने एंड अथर्व को हराया है यहां पे और यहां पे. दैट इज सुमेधा एंड अथर्व. टाइपिंग मिस्टेक है. At what time the game was played between स्मिता एंड पारुल? स्मिता और पारुल का गेम कब हुआ? ये स्मिता, अथर्व, पारुल, अथर्व. हमें स्मिता और अथर्व आमने सामने चाहिए. पारुल एंड स्मिता आमने सामने चाहिए. पारुल का नाम पकड़ लो. पारुल ईशा, पारुल अथर्व, पारुल चीना, पारुल सुमेधा, पारुल स्मिता. ये रहा लास्ट में. पारुल स्मिता लास्ट में, सबसे आखिरी में. 10 o'clock. पारुल एंड स्मिता 10 o'clock. Which of the following are the results that did not happen in the game? इनमें से कौन कौन से रिजल्ट्स गेम में नहीं हुए? पारुल ने ईशा से जीता 9 AM. पारुल ने ईशा से जीता 9 AM. ये हुआ है. हमें पता करना है कौन सा नहीं हुआ. Which did not happen. स्मिता lost a game against सुमेधा at 9:30. 9:30 पे स्मिता जो है सुमेधा से गेम हारी. यहां स्मिता का क्या आ रहा है हमारे पास? विनिंग. यहां पर क्या कह रहा है? स्मिता लॉस द गेम. तो ये चीज नहीं हुई. दिस डिड नॉट हैपन. 2 डिड नॉट हैपन. तो आंसर मेरा डी आना चाहिए. लेट अस चेक. चीना वन अ गेम अगेंस्ट ईशा एट 9:45. 9:45 पे जो चीना है, देखो चीना किससे गेम जीत रहा है? अथर्व से. यहां क्या बोल रहे हैं? चीना किससे जीते? ईशा से. तो ये भी चीज नहीं हुई. दिस डिड नॉट हैपन. ये अथर्व है. लॉस्ट द गेम अगेंस्ट स्मिता एट 10 AM. 10 AM पे अथर्व लॉस्ट द गेम. ये सुमेधा से हार रहे हैं. सुमेधा, नॉट स्मिता, सुमेधा. यहां पे क्या कह रहे हैं? लॉस्ट अ गेम विद स्मिता. तो ये 3 चीजें नहीं हुई. 2, 3, 4 डिड नॉट हैपन. 2, 3, 4 डिड नॉट हैपन. ये चीजें नहीं हुई. Confirm you're able to understand the answers. हाँ, डायरेक्टली यू कैन मार्क 2 एज वेल. यस, दैट्स ट्रू. नहीं, क्योंकि पहले 2 में ऑप्शंस आगे पीछे, तो मैंने कहा एक बार मैं सारे चेक करा दूं आपको. हाउ मेनी मैचेस डिड स्मिता लूज बिफोर शी प्लेड सुमेधा? स्मिता सुमेधा का मैच होने से पहले स्मिता के कितने लॉस थे? देखो, स्मिता सुमेधा का मैच हो कब रहा है? यहां हो रहा है स्मिता सुमेधा का मैच. यहां पे तो इससे पहले स्मिता ने कितने गेम खेले हैं? 2 गेम खेले हैं. तो उसमें स्मिता के लॉस कितने हैं? देखो, स्मिता का 1 लॉस यहां पर है और स्मिता का 1 विन है. ये होने के पहले, बिफोर, ये वाला नहीं काउंट करना है, इसके बिफोर. तो स्मिता के 2 गेम्स हैं, 1 विन 1 लॉस है. तो क्वेश्चन है लॉस कितने हैं? हाउ मेनी मैचेस डिड स्मिता लूज बिफोर शी प्लेड सुमेधा? ओनली 1. अब मुझे बताओ, दिस इज गेम्स एंड टूर्नामेंट्स. लोग गेम्स एंड टूर्नामेंट्स बोलेंगे, बट आपने क्या किया? व्हाट हैव यू डन? व्हाट हैव आई डन? नंबर बेस्ड रीजनिंग, बेसिक एलआर है ना. इसका कोई थ्योरी थोड़ी है. देयर इज नो थ्योरी बिहाइंड दिस. तो गेम्स एंड टूर्नामेंट्स देख के पैनिक मत करो. एक टेनिस वाला टाइप आता है, एक आता है पिकिंग कॉइन्स,
एक आता है राउंड रॉबिन, एक आता है वो टीम्स को मिनिमम स्कोर में जिताना है मैक्सिमम स्कोर में। इनमें थोड़ी सी थ्योरी लगती है, अदरवाइज गेम्स एंड टूर्नामेंट्स इज बेसिक कॉमन सेंस। Any doubts in any of these answers? You want to take time to copy this, confirm that, comment done. ये देखो, mark your answers. Moving on. Chalo. Take your time. There are only 3 questions in this particular set. और question frame कर सकते थे, but deliberate होगा. Information थोड़ी ज्यादा है, so I'll give you again 8 minutes. पहले 2 मिनट में क्या करना है, यहां से लेके यहां तक सारा पढ़ लेना है. आपको एक मेंटल इमेज बना लेना है कि डाटा रिप्रेजेंट कैसे होगा, व्हाट डू आई नीड टू कॉपी फ्रॉम द स्क्रीन, व्हाट थिंग्स डू आई नीड टू नोट बिफोर आई स्टार्ट सॉल्विंग. तो ये डिसीजन आपको लेने हैं. सो टेक 8 मिनट्स, रीड एवरीथिंग फ्रॉम द स्क्रीन. रीडिंग में 2 मिनट का टाइम है बस. One way I improve my reading speed in LRDI also in verbal ability is, मैं ना पेन का जो पिछला हिस्सा है वो स्क्रीन पे रख के मूव करता हूँ, और आई पुट अ फिंगर ऑन द स्क्रीन एंड मूव इट अलोंग. तो फोकस बना रहता है स्क्रीन पे, थोड़ा स्पीड भी बढ़ जाता है. 8 मिनट्स यू हैव. स्टार्ट.
Should I start solving this? So I'm starting the solution. Ten teams have submitted their nominations for reputed hackathon. They were divided into groups of 5 teams each. तो 2 ग्रुप बनेंगे 5 और 5 टीम्स के. Ghost Riders to the Capitalist Group 1, Team Intelligence to Dr. Big Bull Group 2. In the competition, each team from group had to pitch their idea against each team from another group. तो ये जो घोस्ट राइडर है इन्होंने इन सबके अगेंस्ट में प्रेजेंटेशन दिया और जो टीम इंटेलिजेंस है उन्होंने इन सबके अगेंस्ट प्रेजेंटेशन दिया. Every team from group 1, every team will give a presentation against every team from group 2 and vice versa. Example भी दिया है. Ghost Riders will pitch against so on so on so on. ये जो बातें कर रहा हूं मैं अभी. Note to be read as Tech Pirates lost the presentation against evil masterminds. Tech Pirates ने ये मैच हार लिया evil mastermind से. From 1 मतलब कि ये टेक पायरेट्स हार गया तो ये भी टेक पायरेट्स हार गया. ये टाई था और यहाँ पे टेक द कैपिटलिस्ट जो वो जीत गया अगेंस्ट हॉक्स. एक ही नोट है इससे आपको सब समझना है. यू नीड टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग फ्रॉम दिस नोट. फिर से स्लो डाउन. टू बी रेड एज टेक पायरेट्स लॉस्ट द आइडिया प्रेजेंटेशन अगेंस्ट एविल मास्टरमाइंड. ये टेक पायरेट्स ये एविल मास्टरमाइंड. तो हॉरिजॉन्टल वाली टीम हार गई तो वर्टिकल वाली टीम जीत गई. From group 1, the total points earned by each team have been given in the last column. Like Ghost Riders has 7 points overall. Ghost Rider 7 points, Tech Pirates 9 points, Superceller 15 points and points given. For group 2, total points earned by each team have been given in the last row. जैसे ये इंटेलिजेंस वाली टीम जो है 12 पॉइंट्स, इविल मास्टरमाइंड 10 पॉइंट्स, गोल्डन हॉक 14 पॉइंट्स. तो उनके पॉइंट्स नीचे गिवन है. In addition to this, Golden Hawks did not lose the presentation round against Think Tank. ये हारे नहीं है. गोल्डन हॉक ने नहीं हारा है against Think Tank. If a team wins, the winning team will get 5 points. If there's a tie, both teams will get 2 points. If the team lost the match, the losing team will get 0 points. मतलब कि ये जो 17 है, ये जो 12 है, ये जो 10 है, ये 2 और 2 और 2 और 2 और 5 और 5 कॉम्बिनेशन से बनाना है मुझे. 2 और 5 को ऐड करके ही सारे स्कोर्स बनेंगे. तो इससे मुझे विन और लॉस का पता पड़ेगा. आई गेट आइडिया अबाउट विन एंड लॉस थ्रू द स्कोर. अब क्वेश्चन कैसे हैं? व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ द मैच बिटवीन थिंक टैंक एंड एविल मास्टरमाइंड? टेक पायरेट का जो टाई है वो किसके साथ में हुआ होगा? Which of the following 4 statements is true or false? 1 is true, 2 is false, both are true, both are false. तो 4 स्टेटमेंट चेक करने हैं क्वेश्चन 7 में. तो क्वेश्चन 3 ही है. Now, should I draw this table? Should I copy this table? अब आपको एक बात पे ध्यान देना है. यहां पे केवल एक ही टीम का विन लॉस लिखा है. ये इसका लॉस है. इसको पहली वाली टीम को 0 पॉइंट मिलेंगे, लेकिन दूसरी वाली टीम का विन है आपने कहां लिखा? दूसरी टीम को भी तो 5 पॉइंट मिलेंगे ना. तो व्हेन यू कॉपी डाउन द टेबल, डोंट राइट विन लॉस. जैसे टेक पैरेट्स का लॉस है तो आई विल गिव 0 पॉइंट टू टेक पैरेट, और ये स्क्रीमिंग ईगल को आई विल गिव 5 पॉइंट्स. व्हाट आई विल डू इज, rather than copying the table, I will copy the table. I will not write win loss. I will copy this. मैं एक एक्स्ट्रा कॉलम ऐड करूंगा यहाँ पे. I will add extra row here. क्यों?
आई विल ट्राई टू क्रिएट दिस 12. 12 कैसे बन सकता है? 55200 से बन सकता है. हाउ कैन आई क्रिएट 9? 52200 से बनेगा 9. हर टीम के सामने देयर आर गोइंग टू बी 5 प्रेजेंटेशंस, क्योंकि ये सबके अगेंस्ट कॉम्पीट करेगा. तो आई विल ऐड 1 कॉलम, आई विल ऐड 1 रो एंड आई विल राइट इन दिस मैनर. सामने का स्कोर हॉरिजॉन्टल टीम का, ऊपर का स्कोर और सेकंड का स्कोर वर्टिकल टीम का. तो ये वाली टेबल यू डोंट हैव टू कॉपी. दिस इज गोइंग टू बी ऑन द स्क्रीन फॉर यू. दिस इज समथिंग यू शुड कॉपी. ये कॉपी करना चाहिए आपको. यू कॉपी दिस इंफॉर्मेशन. ये कॉपी करना चाहिए आपको. अभी एक डाटा है ये वाला. इन एडिशन टू दिस, यहां पर ये डाटा यूज नहीं हुआ, तो आई विल कम बैक टू दिस इन अ मिनट और सो. ये डाटा देखो, एडिशन टू दिस जो लिखा हुआ है, ये कहीं यूज नहीं हुआ है. अभी हमने कहीं लिखा नहीं. आई विल कम बैक टू दिस. बाकी ये तो पॉइंट ग्रेडिंग है. पॉइंट ग्रेडिंग हमने समझ लिया, ये हमने समझ लिया, ये हमने समझ लिया. दिस इंफॉर्मेशन हैज नॉट बीन यूज एनीवेयर. थोड़ा ध्यान रखना. देखो, फर्स्ट आई एम फोकसिंग ऑन जो स्क्रीन पे मुझे इंफॉर्मेशन दी हुई है कि टेक पायरेट्स हार गए, मास्टरमाइंड जीत गए. टेक पायरेट्स 0 पॉइंट्स और उनके बाजू में 5 पॉइंट्स. 5 पॉइंट ऊपर वाली टीम के हैं, वर्टिकल टीम के. फिर टेक पायरेट्स लॉस्ट अगेंस्ट स्क्रीमिंग ईगल्स. स्क्रीमिंग ईगल्स, ये स्क्रीमिंग ईगल्स है, इनका 0, बाजू वाले का 5. ये वाज अ टाई. टाई मींस दोनों का 2 पॉइंट्स. ये वर्टिकल लाइन है बेटा. आपको चाहिए तो पूरे ड्रॉ कर लो ऐसा. यू वांट अ वर्टिकल कॉलम बिटवीन देम, ऐसा कर लो. लेफ्ट हैंड साइड का स्कोर किसका है? पहली वाली टीम का. राइट हैंड साइड का स्कोर किसका है? ऊपर वाली टीम का. तो यू मस्ट बी एबल टू रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन इफेक्टिवली. ये क्या है? थिंक टैंक जीत गया. थिंक टैंक जीत गया, तो यहां पर 5 और यहां पर 0. ये आखिरी में द कैपिटलिस्ट जीत गया, 5 0. यहां पे गोल्डन हॉक्स के अगेंस्ट में कैपिटलिस्ट जीत गया, गोल्डन हॉक्स एंड द कैपिटलिस्ट. तो यहां पर 5 और यहां पर 0. अब वापस चलो, ये क्या इंफॉर्मेशन थी? गोल्डन हॉक्स डिड नॉट लूज द प्रेजेंटेशन अगेंस्ट थिंक टैंक. गोल्डन हॉक, थिंक टैंक, ये हारा नहीं है. यहां पर 0 नहीं आने देना है आपको. गोल्डन हॉक डिड नॉट लूज. अगर हारा नहीं है, 0 नहीं आएगा. इट कैन बी आइदर 2 और 5. वो मेरे को नहीं पता. अब देखो मैं क्या ट्राई कर रहा हूं. आई एम ट्राइंग टू क्रिएट दी स्कोर्स. 7 कैसे बनेगा? 5 2 0 0 0 से. 9 कैसे बनेगा? 5 2 2 0 0. 15 कैसे बन सकता है? ओनली वन पॉसिबिलिटी, 5 5 5 0 0. 17 कैसे बन सकता है? 5 5 5 2 0. 14 कैसे बन सकता है? 5 5 2 2 0. और कोई स्कोप ही नहीं है. हाउ कैन यू क्रिएट 12? आप बना सकते हो 12 5 5 2 0 0. हाउ कैन यू मेक 9? 5 2 2 0, एक और 0. हाउ कैन यू मेक 14? 5 5 2 2 0. हाउ कैन यू मेक 10? दो पॉसिबिलिटी है. आप 2 2 2 2 लिख दो, 5 बार 2 लिख दो, या 2 बार 5 लिख दो. क्योंकि ये इविल मास्टरमाइंड को आप 5 पॉइंट दे चुके हो, तो 2 2 2 तो नहीं हो सकता. एक ही पॉसिबिलिटी है, 5 5 0 0 0. अब 12 कैसे बन सकता है? 5 5 2 0 0. अब और एक चीज करो, जो जो स्कोर मिल गया, देखो इसका हॉरिजॉन्टल में 2 मिल गया ना, इसका 2 कट कर दो. इसको देखो 2 0 मिल गया ना, 2 0 कट कर दो. अभी थर्ड वाले को एक 5 मिल गया ना, एक 5 कट कर दो. और इसको हॉरिजॉन्टल में देखो 2 5 मिल गया ना, इसको 2 5 कट कर दो. अब वर्टिकल का भी कर दो फटाफट से. इसको 5 मिल गया तो एक 5 कम कर दो. इसको एक 0 मिल गया, कम कर दो. अब देखो 0 एक ही आना था ना इसका, तो हो गया. अब यहां 0 वैसे भी नहीं आएगा. इट इज आइदर 2 और 5. यहां 2 या 5 आएगा. अभी देखो इसको वर्टिकल में एक 2 मिल चुका है और एक 5 मिल चुका है, कट कर दो. इसको 2 0 मिल गए, कट कर दो. अब इनमें से 5 5 2 पर आएगा. अब आप एक बात समझो, इसको एक 5 देना है और इसको हर जगह 0 देना है. कैन आई से
वन मोर थिंग, शुरू वहां से करो जहां इंफॉर्मेशन ज्यादा फिल हो रखी हो। तो यहां पर देखो आपके पास ज्यादा इंफॉर्मेशन फिल हुई है और यहां पर ज्यादा इंफॉर्मेशन फिल हुई है द कैपिटल वाले में। और कहा इंफॉर्मेशन है, यहां पे ज्यादा इंफॉर्मेशन है, यहां पे और यहां पे। एससी स्क्रीमिंग ईगल्स एंड डॉक्टर बिग बुल, जहां पर ज्यादा इंफॉर्मेशन है वहां जल्दी मैच होगा। अभी देखो, अगर मैं यहां पर इसको, मैं बिग बुल पे ध्यान दे रहा हूं, अगर मैं यहां पर 2 पॉइंट देता ऊपर तो बाजू में ड्रॉ करना पड़ेगा। तो बाजू में 2 पॉइंट चाहिए, 2 पॉइंट तो बचे नहीं है इसके, मतलब यहां डेफिनेटली 5 आएगा, यहां डेफिनेटली 0 आएगा। तो एक 5 और एक 0 कम हो गया आपका, देखो ऐसा पकड़ना है। अभी देखो, यहां पर अगर मैं डॉक्टर बिग बुल को 5 देता हूं, 5, तो बाजू में 0 आएगा। 0 तो है ही नहीं इसके हाथ में, इसके हाथ में 5 और 2 है, इसके हाथ में 5 और 2 है, दोनों का तो 5 आ नहीं सकता। एक ही पॉसिबिलिटी, दोनों का क्या आएगा, 2। अंडरस्टैंड, जहां पर ज्यादा हिंट है, ज्यादा इंफॉर्मेशन है, जल्दी फिल होगा। डॉक्टर बिग बुल के 5 पॉइंट्स ही बचे, बाकी तो सारे फिल हो गए। मतलब डॉक्टर बिग बुल के 5 पॉइंट्स यहां पर आएंगे, तो बाजू वाले को क्या मिलेगा, 0। तो इसका 0 गायब कर दो और इसका 5 गायब कर दो, पूरा कॉलम देखो फिल हो गया आपका। ऐसे इंफॉर्मेशन को पकड़ो आप। अभी ये जो है, इसके पास 2 पॉइंट्स बचे हुए हैं और 0 0 बचे हैं। अगर यहां पर 2 आ जाए तो बाजू में 2 चाहिए, 2 तो है ही नहीं कहीं पर भी, 2 तो है ही नहीं इसके पास। तो ओनली पॉसिबिलिटीज क्या आएगा यहाँ पे, 0। तो बाजू में क्या आएगा, 5। तो इसका एक 0 खा जाओ, इसका एक 5 गायब कर दो। सिमिलरली देखो, यहां पे अगर 2 आ गया, बाजू में 2 आएगा, अगर इधर 2 तो इधर 2। इट्स अ पॉसिबिलिटी, हो सकता है, आई डू नॉट नो। यहां पर अगर 2 आ गया तो बाजू में 2 आएगा, तो पॉसिबिलिटी है। क्यों छेड़खानी करना, क्यों रिस्क लेना आपको वहां पे। सो 2 भी आ सकता है, 0 भी आ सकता है, बोथ आर वैलिड। मत शैतानी करो, लीव इट देयर, डोंट फूल अराउंड। अभी हॉरिजॉन्टल पे आओ, देखो द कैपिटलिस्ट पे आओ। इनको क्या चाहिए, देखो 2 2 0 बांटना है। यहां पर अगर 2 आ गया, बाजू में 2 आएगा, विच इज पॉसिबिलिटी। लेकिन अगर यहां पर 0 आ गया, देखो अगर यहां पर 0 आ गया तो बाजू में 5 चाहिए। इसके पास क्या बचा है, 2 2 और एक 0 बचा है। यहां पर 2 आ गया, बाजू में 2, लेकिन यहां पर 0 तो 5 5 है क्या इसके पास, नहीं। तो कंफर्म हो गया, 2 2 आएगा। इसका एक 2 और इसका एक 2 गायब कर दो। मतलब कि इसके ऊपर में क्या आएगा, फॉर श्योर ये बचा था ना आपके पास, इसका 0 तो बाजू वाले का 5, ये भी कंप्लीट हो गया। सो सी, स्टेप बाय स्टेप व्हेन यू थिंक इन दिस मैनर, कैसा इजीली फिल हो रहा है। अब क्या बच गया, इसका 2 0 बच गया। हॉरिजॉन्टली देखो, अगर यहां पर 2 आ गया तो यहां 2 चाहिए, इसके पास तो 2 है ही नहीं, करीब है। इसको इसको 2 दे नहीं सकते, तो इसको 0 देंगे, तो इसको 5 देंगे। इसका 5 कट कर दो और इसका इसका 0 कट कर दो। दैट मीन्स यहां पर 2 और 2 आएगा, कट कर दो। देखो पूरा मैच हो गया ना। ऐसा ट्राई टू गो स्टेप बाय स्टेप, लॉजिक डेवलप करो, लॉजिक बिल्डअप करो। अभी और किसके में हिंट थे हमारे पास, ये वाले पे, टीपी पे। टीपी कौन है, द टेक पैरट्स। इनके पास क्या बचा हुआ है अभी तक, एक 5 और एक 2। अगर मैं यहाँ 5 देता तो बाजू में 0 आता, देखो इसके पास तो 0 बचा ही नहीं है। ये जो GH है, गोल्डन हॉक्स, इसके पास 0 है ही नहीं, तो यहां पर 5 नहीं आ सकता। बचा ही क्या इसके पास, ओनली 5 एंड 2 बचा है, बाकी सब दे दिया ना आपने, ओनली 5 एंड 2 बचा है। अगर 5 नहीं आ सकता तो 2 आएगा, यहां 2 आएगा तो यहां भी 2 आएगा, एक एक 2 गायब कर दो दोनों का। अब इसके पास केवल क्या बच गया, ओनली 5। यहां 5 आएगा तो यहां 0 आएगा, इसका 0 गायब कर दो और इसका 5 गायब कर दो। कंप्लीट हो गया आपकी चार्ट, देखो टेक पायरेट्स की भी कंप्लीट हो गई। अब जो बचे हुए हैं उनमें इक्वल डाटा मिसिंग है। इसमें भी 3 रो खाली है, 3 रो खाली है, 3 रो खाली है। अब थोड़ा सा स्ट्रगल आएगा। अब इसके स्कोर क्या बचे हैं, ओनली 5 एंड 2 जीरोस, ओनली 5 एंड 2 जीरोस। देखो ये जो बंदा है, ये जो टीम है, EM, इविल मास्टरमाइंड, इनके पास कहीं पर भी और कोई स्कोर है ही नहीं। इनके पास सारे 0 बच्चे हैं, देयर इज नो अदर पॉसिबिलिटी। तो ये 0 तो ये 5, इनका 5 चला गया। ये 0 तो ये 5, इनका भी 5 चला गया।
ये 0 तो ये 5, इनका भी 5 चला गया, तो ये सारे स्कोर मैच हो गए। तो आपका देखो इविल मास्टरमाइंड मैच हो गया। अब क्योंकि इसके सारे मैच हो गए, बचे 2 0, ओनली 2 zeros आर देयर, तो ये 0 तो ये 5, इनका 5 निकल गया, इनका 0 मैच हो गया। ये 0 तो ये 5, इनका 5 निकल गया, इनका 0 मैच हो गया। तो आपका घोस्ट राइडर भी पूरा मैच हो गया। अभी कौन से बच गए? सुपर सेलर्स बच गए। अभी देखो क्या स्कोर है इनके पास, एक 5 और एक 0 बचा है। यहां 5 तो बाजू में 0, 0 तो है ही नहीं इसके पास, 0 तो है ही नहीं, तो यहां 0 तो यहां 5, इसका 5 निकल गया, इसका 0 निकल गया। दैट मीन्स यहां पर 5 तो यहां पर 0। देखो चक्कर नहीं खाने हैं, सीखना है, पेशेंस डेवलप करना है। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन आपने लिखा है ना, दिस इज मेकिंग योर लाइफ इजियर। यहां पर बच गया 5, यहां पर बच गया 0। अब पूरे कॉलम एक की जगह खाली है, इसका 2 और इसका भी 2। हो गई आपकी पूरी टेबल डन। हाउ मच टाइम विल दिस टेक मी इन द एग्जाम? वंस आई अंडरस्टैंड द एनालिसिस कि मेरे को 2 नंबर हर एक जगह पर चाहिए, वंस आई कॉपी दिस डाउन, बेटा टेबल कॉपी करने में 2 मिनट लगेंगे आपको। सो रफली 2 minutes to read everything, roughly 2 minutes to copy down the table, and 4 से 6 मिनट लगेंगे इन सॉल्विंग एवरीथिंग। ये जो पूरा आप देख रहे हो इजीली 6 मिनट्स लेगा, मे बी 2 मिनट 1 मिनट और ले लेगा, इतना टाइम लगेगा आपको पूरी टेबल कंप्लीट करने में। एंड थैंकफुली हर एक चीज मैच होती जा रही थी। इट इज ऑल्सो पॉसिबल ऐसा कोई नंबर आ जाए, ऐसा कोई कॉलम आ जाए जिसमें वैल्यू ना बैठे, या 2 केसेस बन जाए, फिर इफ वाले सवाल बनेंगे, देन वाले सवाल बनेंगे। अगेन आई विल कैटेगराइज दिस एज बी, ये सी बन जाएगा इफ यू आर नॉट एबल टू थिंक सो क्लियरली। ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम वेयर, जहां पर डिटेल ज्यादा हो। यहां पर डिटेल ज्यादा है और यहां पर डिटेल ज्यादा है, तो यू आइदर स्टार्ट फ्रॉम टेक पायरेट्स और यू स्टार्ट फ्रॉम डॉक्टर बिग बुल। दोनों केस में जल्दी मैच होगा। एक आधा 0 आगे पीछे कर दिया क्या मैंने ईएम का? बेटा ईएम का वैल्यू ये, बेटा देखो सेकंड कॉलम ईएम का है, सेकंड पोर्शन 0 + 5 + 0 + 0 + 5, 10 हुआ ना। 15 कैसे? फ्रंट वाला हमने किसके लिए रखा है? फ्रंट वाला हमने रखा है हॉरिजॉन्टल के लिए। नहीं बेटा, वर्टिकल वाला जो है वो सेकंड वाले का वर्टिकल है, ये ईएम का है। डिस्कशन हुआ था ना हमारा, जो हॉरिजॉन्टल है वो सामने, जो ये जो है जीआर गोस्ट राइडर का 5 है, सुपर सेलर का 5 है, थिंक टैंक का 5 है। ऐसा सोचो, अगर विन लॉस है तो हर एक कॉलम 25 पॉइंट्स का है, हर एक कॉलम 25 पॉइंट का। अगर विन लॉस है, ड्रॉ नहीं है, देयर इज नो ड्रॉ, तो उसमें अगर अपोनेंट को 15 पॉइंट मिले हैं तो इसको तो 10 ही मिलेंगे ना, एग्जैक्ट है। ईएम के पॉइंट सेकंड पार्ट में है, सेकंड स्कोर इज वर्टिकल टीम, 25 पॉइंट का हर एक टीम का कंपटीशन है। एक बार टेबल कंप्लीट करो। हाँ, हॉरिजॉन्टल का जितना टोटल उतना वर्टिकल का भी आएगा। एक ही इशू है, व्हेन अ मैच एंड्स इन अ ड्रॉ। देखो अगर विन या लॉस है,
विन या लॉस है, तो 0 और 5 पॉइंट का हर मैच है। एक टीम के 5 मैच 25 पॉइंट। लेकिन अगर ड्रॉ आ गया तो दोनों को 2-2 पॉइंट्स मिलेंगे, तो एक मैच 4 का हो जाएगा, तो एक नंबर कम हो जाएगा। तो अगर किसी के 3 ड्रॉ हैं तो आपको वर्टिकली 22 नंबर मिलेंगे। किसी के 2 ड्रॉ हैं तो आपको 24 नंबर मिलेंगे वर्टिकली सबके। जैसे आप यहां पे ध्यान दो, यहां पर आपको दिख रहे हैं 2 ड्रॉ हैं, तो अब जब सारे नंबर ऐड करोगे तो आपको 23 नंबर मिलेंगे। 5 + 4 + 5 + 4 + 5। Confirmation on the table. क्लियर है? वेरी गुड। टेबल कंप्लीट कर लो एक बार। ऑल राइट। अब हमें बार बार वापस जाना पड़ेगा टू कंफर्म आवर आंसर्स, दैट इज ओके। व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ द राउंड बिटवीन थिंक टैंक एंड इविल मास्टरमाइंड? इविल मास्टरमाइंड ये है और थिंक टैंक ये है। तो यहां पे आप देखो, क्योंकि हॉरिजॉन्टल सामने 5 है, तो थिंक टैंक वॉन, एविल मास्टरमाइंड लॉस्ट। थिंक टैंक वॉन, एविल मास्टरमाइंड लॉस्ट। एविल मास्टरमाइंड लॉस्ट। थिंक टैंक जीत गई, एविल मास्टरमाइंड लॉस्ट। टेक पैरेट्स का जो टाई था वो किन के अगेंस्ट था? टेक पैरेट कौन है? टेक पैरेट ये वाले हैं। तो टेक पैरेट के सामने 2 दिख रहा है 2 बार, इधर और इधर देखो आप। तो इनका गोस्ट नहीं, गोल्डन हॉक के साथ में, गोल्डन हॉक देखो यहां पे लेफ्ट साइड में, गोल्डन हॉक नाम है GH, और डॉक्टर बिग बुल, इन दोनों के साथ में टाई था। किनका? टेक पैरेट्स का। टेक पैरेट्स का टाई था डॉक्टर बिग बुल के साथ में और गोल्डन हॉक्स के साथ में। ये देखो एक बार फिर से देखो, टेक योर टाइम। हॉरिजॉन्टली सामने लिखा होना चाहिए नंबर, सामने 2 कहां लिखा है? टेक पैरेट्स के सामने। विच ऑफ द फॉलोइंग 4 स्टेटमेंट्स, फॉलोइंग 4 स्टेटमेंट के बारे में पूछ रहा है, करेक्ट कौन से हैं? करेक्ट, गोल्डन हॉक्स जीत गए सुपर सेलर से, ये गोल्डन हॉक वाले हैं, ये सुपर सेलर वाले हैं। दिस इज गोल्डन हॉक, ये सुपर सेलर है। तो क्योंकि 5 राइट साइड में है, मतलब गोल्डन हॉक वाले जीत गए। यस, ये तो सच्ची बात कह रहे हो, बट इज ट्रू। Evil Mastermind won the presentation against Ghost Riders. Evil Mastermind ने घोस्ट राइडर से जीता क्या? देखो ये वाले की बात कर रहे हैं, राइट साइड में 0 है, तो इविल मास्टरमाइंड जीता कि हारा? हार गया। तो ये सच तो नहीं है, हमें ट्रू देखना है। अच्छा, अभी कौन सा ऑप्शन सही है ये भी देखना आपको। स्क्रीमिंग ईगल्स वॉन द प्रेजेंटेशन अगेंस्ट थिंक टैंक। स्क्रीमिंग ईगल्स वाले ये हैं, स्क्रीमिंग ईगल्स, यहां देखो ऊपर लेफ्ट साइड में स्क्रीमिंग ईगल्स, ये किससे? थिंक टैंक के साथ में। थिंक टैंक, थिंक टैंक वाले ये हैं, यहां नीचे लाते हैं। क्या स्क्रीमिंग ईगल जीत रहा है? स्क्रीमिंग ईगल 0 है तो हार रहा है।
तो स्क्रीमिंग ईगल लॉस्ट, तो ये भी झूठ हुआ, ये लाई है. पहला वाला सच है, अदर टू आर लाइज. द प्रेजेंटेशन बिटवीन कैपिटलिस्ट एंड टीम इंटेलिजेंस वाज अ टाई. कैपिटलिस्ट एंड टीम इंटेलिजेंस, ये वाले पहले वाले टीम इंटेलिजेंस देखो ऊपर, पहले वाले, क्या ये टाई था? बिल्कुल टाई था. तो अब दो स्टेटमेंट ट्रू हैं, 1 and 4 आर ट्रू, 2 and 3 आर फॉल्स. स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट 2 इज फॉल्स. हाँ जी, सही बात है. स्टेटमेंट बोथ 2 and 4 आर ट्रू, नहीं ये तो गलत है. ओनली स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, नहीं भाई 4 भी तो सही है. ओनली स्टेटमेंट 3 इज फॉल्स, नहीं सेकेंड भी गलत है. द आंसर इज ए. 1 ट्रू है और सेकेंड फॉल्स है. Guys, confirmation on this. 3 क्वेश्चन, तीनों बन गए. वेरी गुड. तो यू गाइस डिसाइड, नया सेट शुरू करना है या नेक्स्ट डे पे कब करना है. नेक्स्ट सेट इज ऑल्सो वर्थ 30 to 35 minutes कंसिडरिंग एवरीथिंग. पहले मैं आपको 8 to 10 minutes सॉल्विंग के दूंगा, फिर मैं खुद रीड करके सॉल्व कराऊंगा इन द नेक्स्ट 20-25 minutes. अदर्स कंफर्म, एक रिप्लाई आ गया नेक्स्ट डे. अदर्स ऑल्सो कंफर्म. ओके, ठीक है. अगला भी नंबर बेस्ड रीजनिंग पे ही है, इस तरह से ही है, बट पॉसिबिलिटीज वाला है. द नेक्स्ट सेट हैज 2 or 3 पॉसिबिलिटीज, तो 2 से 3 टेबल्स बनाने पड़ेंगे आपको. दैट इज डेफिनेटली कैटेगरी बी और कैटेगरी सी, उससे नीचे नहीं आ सकता कैटेगरी अपना. तो ये गेम्स एंड टूर्नामेंट्स है. Okay, so I'll meet you, I think, Monday. Yeah, Monday we'll meet. Good night, guys. Done for today.